Welcome students. Good afternoon. We are progressing day by day in the chapter wise in online class program. Just before you, I am Ranjan Kumar in St. Paul Public School classroom study, and this topic has been taught up to the acids part. Now today I am going to start the bases. There are three terms: acids, bases and salts. So up to acids there are different terms or topics. Suppose definition of acids, physical properties of acids, chemical properties of acids, and so many terms that has been taught related to acids. Today it is the term base. You know what is base? Bases are the chemical compounds. First you know the definition. Bases are the chemical compounds which provides OH minus ion in aqueous solution. This may be oxide or hydroxide of metals. Example of bases are oxide or hydroxide of metal. CaO, it is basic in nature. Example of base. MgO, MgOH whole twice. NaOH, KOH, CuOH whole twice. FeOH whole twice. FeOH whole thrice. NH4OH. You must know the name: calcium oxide, magnesium hydroxide. Other name of this milk of magnesia. Sodium hydroxide, other name caustic soda. Potassium hydroxide, other name caustic potash. Copper hydroxide, iron hydroxide, iron 2 hydroxide, here is the valency 2, iron 3 hydroxide, and ammonium hydroxide. These are the bases. You know, algebra have two parts. One positive, another negative. NH4OH, and if it is aqueous, that means in water it is splitted into the positive ion cation, ammonium ion, and it is aqueous also, and the hydroxide ion, another hydroxide. So you must see CaOH whole twice, calcium hydroxide, another name lime water, and when it is splitted in aqueous form, so Ca 2 plus and 2 OH minus. So seventh Arrhenius, this was the name of the scientist who gave this definition, that all those chemical substances which release hydroxide ion in aqueous solution are called bases. The another term are alkalis. What is the difference between the bases and the alkalis? Alkalis are also the bases, but all bases are not alkalis. This term must you know. Alkalis are the bases, but all bases are not alkalis. ठीक उसी प्रकार से
प्रोवर्ब आपने सुना है, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती। आप देखिए उसी से मिलता जुलता ये भी है कि ऑल बेसेज आर नॉट अल्कलीज, सम ऑफ द बेसेज आर अल्कलीज। NaOH, it is the example, best example of alkali. KOH, it is the best example of alkali. Also these are strong bases, a strong bases. Why these are called strong bases? And also these are the example of alkali. But I have told you that all bases, suppose CuOH whole twice, this is not alkali. MgOH whole twice, not alkali. Alkalis are soluble in water. Those bases which are soluble in water, those bases, सभी बेस वाटर में soluble नहीं होते हैं. Those bases which are soluble in water are called alkalis. You must write the example also because the question is asked in the examination. NaOH, KOH, etc. So many more. Now you understand strong bases and weak bases. A strong and weak bases. एक का मतलब हुआ बहुत ही मजबूत और एक का मतलब हुआ कमजोर। ये दो प्रकार के बेसेस। आप जानिए कि इसको इस तरह से कि एसिड और बेस, एसिड एंड बेसेस both have common. What is this? What is this? Question before. क्या है कॉमन जो एसिड और बेस दोनों में आते हैं? ये है H प्लस आयन। ओके, H प्लस आयन जो है ना वो दोनों में आते हैं। ये अलग है, हमने बताया था कि सोरेनसन बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने पीएच स्केल का इन्वेंशन किया था। और वो पीएच स्केल बतलाता है कि ऐसे देखिए, लिटमस पेपर जो है वो यह नहीं बतलाता है कि कौन एसिड स्ट्रांग है, कौन बेस स्ट्रांग है, कौन बेस वीक है, कौन एसिड वीक है। वो लिटमस पेपर डिटरमाइन नहीं कर सकता है। वो पीएच स्केल जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो ही जो है वह या तो पीएच पेपर हो, पीएच दो तरह से, एक पीएच स्केल फॉर्म में होता है और दूसरा पीएच पेपर होता है। जिस तरह से लिटमस होता है दो फॉर्म में मिलता है, एक लिटमस सॉल्यूशन मिलता है और एक लिटमस पेपर मिलता है। अब यहाँ हमें जानना है कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का ये एग्जाम्पल हुआ, सिंबल हाइड्रोजन। ये सिंबल किसका है देखिए, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन।
अब देखिए ये आपका 10 टू द पावर 0 से लेके नेगेटिव में 10 पर -1, 10 पर -2, 10 पर -3, 10 पर -4, इस तरह से आपको देखिए ये जो हम बढ़ रहे हैं ये किस ऑर्डर में, ये बढ़ रहे हैं हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि देखिए 10 टू द पावर 0 तो 1 होता है, बट 10 टू द पावर 1 by 10 दैट मीन्स 0.1, और 10 पर पावर -2 1 by 100 दैट मीन्स 0.01। हम ये जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है ये हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेकर के बढ़ रहे हैं, 10 पर पावर -6, 10 पर पावर -7, और यहाँ जब आते हैं ना तो ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, और इधर जितना है सब एसिड। बट आप देखिए एसिड में जो स्ट्रेंथ है वो जब इधर जाओगे तो एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ता है, स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, स्ट्रेंथ इंक्रीजेज व्हाइल यू आर गोइंग टू लेफ्ट, जब लेफ्ट की तरफ जाओगे स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इन एसिड, एसिड में, यानी देखिए 10 टू द पावर 0 है तो ये 0, 10 टू द पावर -1 है, पीएच देखिए पीएच का सिंबल पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये होता है, और देखिए इनके पीएच 0, इनके पीएच 1, इनके पीएच 2, इस तरह से पीएच देखिए, पीएच क्या है, व्हाट इज पीएच, तो पीएच का सिंबल स्मॉल p और ब्लॉक लेटर h होता है, ये भी आप जानिए, इट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। दैट मीन्स किसी का भी पीएच अगर डिफाइन करना है, फाइंड करना है, तो माइनस एंड लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब ये देखिए 10 टू द पावर -3 है, बताएंगे आपको कि किस तरह से डिटर्मिनेशन होता है। ये 4 जिनके 10 टू द पावर -4 हैं, 10 टू द पावर -5 हैं, तो इनके 5, इनके 6 और इनके 7, यानी जो प्योर वाटर है या जो न्यूट्रल साल्ट है, सॉल्ट पढ़ेंगे आप तो सॉल्ट के भी क्लासिफिकेशन है, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। तो जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है उनके जो एक्वा सॉल्यूशन होते हैं उनके जो पीएच वैल्यू होते हैं, पीएच वैल्यू देखिए पीएच आइदर इक्वल टू 0, पीएच लेस देन 7 एसिड के लिए, ये न्यूट्रल के लिए, और अगर पीएच ग्रेटर देन 7 है तो बेस के लिए। आप ये सब जान करके नोट कर लेने से फायदा होगा। कई बच्चों को तो आता भी होगा, कई जिन बच्चों को नहीं आता होगा, सब लोग नोट करके स्कूल में जब आएंगे फिर इसको याद करके सुना देंगे। 10 टू द पावर -8 तो इनके 8। अब यहां से देखिए इधर बेस, इधर जैसे जैसे इंक्रीज होगा राइट साइड में, तो यहाँ जो है क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ बेस इंक्रीजेज, स्ट्रेंथ ऑफ बेस इंक्रीजेज 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -10, 10 टू द पावर -11, 10 to the power -12,
10 to the power minus 13, 10 to the power minus 14। देखिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। और इधर देखिए ये 0 और 1 वाले स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब हमें बताएगा कंसंट्रेटेड HCl का, बताइए कंसंट्रेटेड HCl। तो इनके जो हैं pH कितने होते हैं, 0। और इस तरह से आप जैसे ब्लड है तो ब्लड का नॉर्मल ब्लड जो एक हेल्दी ह्यूमन है उसका ब्लड का जो pH होना चाहिए और 6 और 7 के बीच, 6 और 7 के बीच, इन बिटवीन 6 एंड 7। जैसे टूथपेस्ट है तो उसका क्या होता है नेचर, तो टूथपेस्ट जो है वह बेसिक होता है। टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिक। अब हम देखिए इसको मिटा करके आपको बताते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में आपने जाना कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, जो ज्यादा वो है जिनमें लेस नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जिसमें मोर नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन होता है। आप देखिए जैसे कोई भी एक्वस है तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि 298 के केल्विन में टेम्परेचर 298 के, अब मान लीजिए इसको -273 करेंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस, जो अबाउट रूम टेम्परेचर होता है, अबाउट रूम टेम्परेचर। अब इतने पर जो है ना वो वाटर जो है, प्योर वाटर का डिसोसिएशन जब होता है, ये देखिए इसका जब डिसोसिएशन होता है, क्योंकि इसका डिसोसिएशन तब होगा जब हम इसमें कुछ अमाउंट में एसिड डालें, क्योंकि प्योर वाटर जो है वह बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो जस्ट यू नो इट इज द प्योर वाटर, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड while it is electrolyzed in presence of a very small amount of acid that makes the water good conductor of electricity, तो ये टूट जाते हैं। देखिए ये बोथ साइड रिएक्शन है, रिवर्सेबल जिसको कहते हैं, रिवर्सेबल H+ OH-, इसमें टूट जाते हैं। तो आप देखिए एट 25 डिग्री C जो है क्या होता है, जो प्योर वाटर होगा, जो प्योर वाटर उनके जो H+ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इसको बोलिए, और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन बोलिए, इनके वैल्यू इतने होते हैं। M क्या है, इतने M मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयन। M जो है एक यूनिट हुआ मोलर कंसंट्रेशन आयन। और अब क्या है कि देखिए प्रोडक्ट क्या है, देखिए प्रोडक्ट कितने ही टेम्परेचर पर इनके प्रोडक्ट OH- आयन, इसको कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इट इज कांस्टेंट Kw, that means H2O. It is called ionic product of water. It is always constant, और हमने अभी तुरंत बताया कि इनके भी वैल्यू 10⁻⁻7 होते हैं, और इनके भी वैल्यू M में 10⁻⁻7 होते हैं। वही M क्या है, तो मोलर कंसंट्रेशन बताया ना, यूनिट, तो मोलर कंसंट्रेशन। तो इस तरह से 10⁻⁻14 M² हो गया।
तो बताया जाएगा कि आपको 25 डिग्री सेल्सियस और 298 के पर जो है वह कितना आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है 10 to the power minus 14 m square. Yes. And then just I am trying to give you some of the numerical problem based on the pH. तो pH related जो है प्रॉब्लम वो एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स का आता है, तो हम लोग उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर ले। तो देखिए उसके लिए आपको या तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू दिया रहेगा और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू दिया रहेगा। अब सपोज कीजिए कि H प्लस आयन का वैल्यू दिया है, गिवन कोई एक सॉल्यूशन है और जिसमें आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू वो रहेगा 10 to the power कोई भी नेगेटिव 10 to the power, जैसे देखिए -5 और m है, और कहेगा टू फाइंड pH ऑफ द सॉल्यूशन। pH ऑफ द किसी भी सॉल्यूशन का अगर ये दिया है, आपको वैल्यू फाइंड करना है जो है pH का, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। हमने बताया अभी आपको, उससे पहले और थोड़ा सा बता दूं इसको स्टार्ट, ये क्या कहते हैं सॉल्यूशन से पहले, कि आप जानिए कि लॉग अगर बेस 10 में, अगर नहीं बल्कि 10 में ही लिया जाता है एज ए 10 बेस लेकर के, और 10 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। और अगर लॉग, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं इसके पहले भी बताता कि 10 to the power 0 क्या होता है 1। तो जब हम इस पावर नोटेशन को स्टूडेंट्स 10 to the power 0 is equal to 1 होता है, 10 पर पावर 1 equal to 10 होता है, 10 पर पावर 2 equal to 100 होता है, ओके, 10 पर पावर 3 equal to 1000 होता है। और हम अगर इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखें एज ए लॉग टेकिंग बेस 10 बेस लेकर के लिखें, तो कैसे लिखोगे? तो लॉग ले लिया और बेस 10 ले लिया और इधर से ये 10 आ गया और इज इक्वल टू 1। लॉग ले लिया और यहाँ बेस 10 ले लिया और ये जो साइड 1 है ये 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, लॉग यहाँ 10 ले लिया और उधर से 100 आया तो वैल्यू 2, दैट मीन्स कि 100 के लिए 2 आ गया। और एक और फॉर्मूला जानिए कि लॉग ये है 10 और m पर पावर अगर n है, बेस 10 ही है, m पर पावर n है, हम इसको लिखेंगे, ये जो पावर देख रहे हो ये n log 10m आ जाएगा। तो हमें इस जो दिया हुआ मटेरियल है उनको हमें ध्यान में रखना है, लर्न करना है। अब यहाँ आते हैं, इसके साथ ही आते हैं कि हमारे पास में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू दिया हुआ है और हम कुछ वैल्यू इससे निकालना चाहते हैं pH का। तो व्हाट आई टोल्ड बिफोर यू कि pH क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस और लॉग और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू देखिए 10 to the power -5। तो हमने बोला था कि ये बेस को यहाँ 10 लीजिए, 10 और यहाँ 10 to the power -5, जो क्या आएगा -5। देखिए अभी ये हम फॉर्मूला यूज किया तो माइनस और ये पावर जो है ये पावर यहाँ देखिए आ गया इनटू लॉग 10। ओके, नाउ यू सी माइनस माइनस प्लस 5 और लॉग 10 बेस टू 10 का वैल्यू 1, तो 5 और 5 का मतलब हुआ कि ये लेस देन 7 है, इसका मतलब
जो सॉल्यूशन है वह क्या है? सॉल्यूशन इज एसिडिक। एसिडिक तो है बट लेस स्ट्रेंथ वाला एसिड है, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो लेस स्ट्रेंथ वाला एसिड होता है। So students, just tomorrow, not tomorrow, day after tomorrow, when you will join with me, I will discuss the chemical properties of the base and so many materials related to this chapter. And now, just I am stopping my lecture. Thanks for watching this classroom study. Thanks.